اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روزنامہ سعادت، جس نے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق 1937 میں منصہ شہود پر نمودار ہو کر بالکل اپنے نام کی طرح تحریک پاکستان کے ہراول دستہ کے ایک سپاہی کے طور پر اپنی صحافتی خدمات کو سعادت سمجھتے ہوئے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن بر صغیر کے محکوم مسلمانوں کا اپنے دل میں درد رکھنے والے بانی روزنامہ سعادت الحاج امام بخش ناصر سیفی نے سعادت کے صفحات کو اپنے قلم سے تحریک پاکستان کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد و رہنمائی کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سعادت کے صفحات کو وقف کیے رکھا۔ بانی سعادت امام بخش ناصر سیفی کی زیر ادارت سعادت کا پہلا شمارہ جو 27 اگست 1937 کو شائع ہوا، یاد رہے کہ سعادت نے اپنے صحافتی، علمی، ادبی اور اصلاحی سفر کا آغاز ایک ہفتہ وار اخبار کی حیثیت سے کیا۔ تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک اور پھر قیام پاکستان سے روزنامہ سعادت اپنا صحافتی سفر نہایت جرأت، بے باکی اور معیار کے ساتھ طے کرتے کرتے جب 50 سال کا ہو گیا تو اگرچہ آسمان صحافت کے اس درخشندہ ستارے کو اپنے قلم سے روشنی دینے والا مجاہد تحریک پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے کونا مشک صحافی اور بانی سعادت 1984 میں اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے، مگر سعادت کی ٹیم نے گولڈن جوبلی نمبر شائع کرنے میں جس قدر لگن اور محنت سے کام کیا، اس کا منہ بولتا ثبوت گولڈن جوبلی نمبر کا جاذب نظر ٹائٹل آپ کے سامنے موجود ہے۔ اے سعادت مند، اے غربت پسند، حق نے بخشا ہے تجھے آغاز سے ذوق بلند، تجھ کو اپنے ذوق کی ہر دم سزا ملتی رہی، تجھ کو اپنے ذوق کی ہر دم سزا ملتی رہی، یہ سزا لیکن تیرے حق میں رہی ہے سود مند۔ آج تیری عمر کے ہوئے 50 سال، آج تیری عمر کے ہوئے 50 سال، اس بڑھاپے میں بھی تو ہے نوجوان و ارجمند، تو کہ تھا تحریک پاکستان کا پرچم کشا، تو کہ تھا تحریک پاکستان کا پرچم کشا، تو نے ڈالی ابتدا ہی میں ستاروں پر کمند۔ ناظرین، روزنامہ سعادت کی 50 سالہ تقریبات کے موقع پر شائع ہونے والے گولڈن جوبلی نمبر کے یہ صفحات تاریخ کا حصہ ہیں، جن پر تحریک پاکستان، تشکیل پاکستان اور تعمیر پاکستان کی ایک داستان رقم ہے۔ اس سفر کے دوران روزنامہ سعادت نے کئی نشیب و فراز، مصائب و مشکلات، اچھے اور برے دن دیکھے، مگر سعادت نے عزم مصمم اور غیر متزلزل ارادوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ ان صفحات پر پاکستان کے پہلے وفاقی محتسب اعلیٰ سردار محمد اقبال، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان کے علاوہ مخدوم سجاد حسین قریشی، اقبال احمد خان، جنرل ریٹائرڈ محمد موسیٰ، حامد ناصر چٹھا، غوث علی شاہ، حکیم محمد سعید، مجید نظامی، ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت، میاں خلیل الرحمان، ایڈیٹر روزنامہ جنگ، عارف نظامی،
एडिटर दी नेशन के अलावा मुख्तलिफ तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के पैगामात और मजहबी, माशरती, माशी और दीगर मौज़ूआत पर इंतहाई तहकीक पर मुश्तमिल मज़ामीन शामिल हैं। अलावा अज़ीम, इस गोल्डन जुबली में सादत के गुजरे 50 सालों के औराक की गर्दानी करके तहरीक पाकिस्तान की एक झलक भी पेश की गई है। इन सफ़ात पर रोजनामा सादत की टीम की जुर्रत, बेबाकी, हक गोई और मेहनत और लगन को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों की तशहीर के लिए गोल्डन जुबली नंबर के सफ़ात इश्तहारात से भी मुज़य्यन है। खतातुल मुल्क ताजुद्दीन ज़र्री रकम आफरीन नाम, जिनका कलम पर एक अरसा तक मोती बिखेरता रहा और जिनकी खत्ताती की बैनुल अक़वामी दुनिया भी मोतरफ रही। ताजुद्दीन ज़र्री रकम को एजाज हासिल है कि उन्हें रोजनामा सादत की इब्तदाई पेशानी तहरीर की। आपके सामने स्क्रीन पर मौसूफ के बारे मजमून एक फन मुश्तमिल रोजनामा सादत एक सफा गुजरे वक्त की याद इस लिहाज से भी ताजा कर रहा है कि साहिबे मजमून भी कोई मामूली शख्सियत नहीं। अपने कलम से नोक पलक का जादू जगाने वाले ताजुद्दीन ज़र्री रकम मरहूम के बारे मजमून साबिक वज़ीर आला पंजाब और सियासत में शराफत के अलम बरदार गुलाम हैदर वाई का तहरीर करदा है। नासिख मदीर सुबह सादत चला गया, नासिख मदीर सुबह सादत चला गया, सैफी इमामे शामे सहाफत चला गया। अब मुंतशिर है अहले सहाफत का काफिला, सालारे कारवाने सहाफत चला गया। सच्चे आशिक रसूल, इमाम सहाफत, इस्लामी रियासत की मर्द आहन शख्सियत, तहरीक पाकिस्तान के नामवर कारकुन, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सिपाही, उसूल पसंद शख्सियत, आसमानी सहाफत का ताबिंदा आफ्ताब, जब एक अजीम सहाफती मिशन की पासदारी करते हुए बिलाखिर हमें दागे मुफारकत दे गया। जेरे नजर एडिशन इस मर्द हक के चहलम के मौका पर सादत की टीम ने नहायत मेहनत और तहकीक के बाद शाये किया, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात ने जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए आपको बाबा नजरिया पाकिस्तान का नतीब, उसूल पसंद, सैफ सहाफत, अहद आफरीन शख्सियत वगैरह के अलकाबात और खिताबात से नवाजते हुए मज़ामीन तहरीर किए, जो यकीनन तारीख हैं। सैफी अजीम मुहिब्बे वतन शख्सियत थे। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अदारिया की आखिरी सतूर तहरीर फरमाते हुए समाज दुश्मन अनासिर की निशानदही करते हुए सियासी जमातों को अपने फराइज की दावत फिक्र दी और लिखा कि पाकिस्तान में दुश्मन अनासिर की एलानिया और खुफिया सरगर्मियां जारी हैं और मुहिब्बे वतन सियासी जमातें कानून के एहतराम के पेश नजर कोई खिदमत सर अंजाम देने से कासिर हैं। आपको अल्लाह के आखिरी दीन, दीन इस्लाम और अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क और मोहब्बत थी। आप फरमाते हैं कि इस्लाम के फयूज़ो बरकत इश्क रसूल ही से हासिल हो सकते हैं। ईमान बख्श नासिर सैफी को कलम के जरिए किए गए जहादो मिशन पर फख्र एतमाद हासिल था। अपनी जिंदगी में आप एक खत में तहरीर फरमाते हैं कि बंदा और उसके प्यारे हबीब के हुजूर कलम के इस्तेमाल में शर्मिंदा ना होगा। है मेरी तस्वीर, मेरी याद का परतौ। नाजरीन, आपकी आंखों के सामने से गुजरने वाली ये तस्वीर उस मर्द हक जिसने
अपनी तमाम जिंदगी मादी मुफादात से बालातर होकर वतन की मोहब्बत में डूबकर अपने कलमी मिशन को जारी और सारी रखा कि बचपन, जवानी और फिर सहाफती मिशन की अदायगी की अक्कासी करती हैं। ये झलकियां इमाम सहाफत नासिख सैफी की फैमिली, वालिद गिरामी, उस्ताद गिरामी के अलावा जलसे, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, मजाकरे, मुबाहिसे, बैरूनी दौरे, अहम कौमी शख्सियात के इंटरव्यूज और मुलाकात वगैरह की कवरेज करने के अंदाज को पेश करती हैं। ये अप्रैल 1966 का जमाना है जब सऊदी अरब के फरमारवा पासबान हरम, इत्तेहाद आलम इस्लाम के सफीर शाह फैसल मरहूम की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान के सरकर्दा सहाफियों को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी गई। सहाफियों के इस कारवां का सालार इमाम सहाफत इमाम बख्श नासिख सैफी भी इस वफद में शामिल था। सऊदी अरब के प्रेस ने इस वफद के दौरे को भरपूर कवरेज दी। नुमाया कौमी रोजनामे जिसमें रोजनामा अक्काज, अल नदवा और अल बिलाद शामिल हैं ने खुसूसी नंबर शाये किए। इमाम बख्श नासिख सैफी और दीगर सहाफियों पर इस वक्त का वालहाना और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शाह फैसल सऊदी अरब के वजीर इत्तलात के अलावा दीगर वज़रा, अकाबरीन और अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी फरमानरवा शाह फैसल ने पाकिस्तानी सहाफियों के इस वक्त से मिलकर नहायत खुशी और मुसर्रत महसूस की और कहा कि इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए आप अपना खुसूसी किरदार अदा करें। ये तमाम उस खुसूसी दौरे की तारीख के औराक को पलटते हुए भरपूर अक्कासी करती हैं। इस दौरे के दौरान मुहिब्बे वतन और इस्लाम के सिपाही इमाम बख्श नासिख सैफी और दीगर ने खाना काबा को अपने हाथों से गुस्ल दिया, नवाफिल पढ़े और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और आलिम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए खालिके कायनात के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की। सऊदी प्रेस ने सहाफियों के इस दौरे को नहायत अहमियत का हामिल करार दिया। रोजनामा सादत को यह एजाज हासिल है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा इस अखबार के तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार को तस्लीम किया और 1988 में हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश और दरखास्त पर रोजनामा सादत के 26,000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मजमूए को बिला मुआवजा हुकूमत पाकिस्तान के इदारे नेशनल आर्चीव के हवाले किया गया। यह मवाद 1937 से 1970 तक के दौरानिये पर मुश्तमिल था। नेशनल आर्चीव ने इन तारीखी सफ़ात पर मुश्तमिल 21 माइक्रोफिल्में बनाकर महफूज कर ली और इनकी एक कॉपी 29 अक्टूबर 1988 को फैसल आबाद में मुनक़दा एक शानदार तकरीब में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल आर्चीव मिस्टर अतीक जफर ने रोजनामा सादत के मैनेजिंग एडिटर शफीकुर रहमान सैफी और मदीर आला अलहाज अख्तर सिद्दीकी के हवाले की, जो अब तक हुकूमत पाकिस्तान और रोजनामा सादत के दफ्तर में महफूज हैं। 16 अगस्त 1997 को हुकूमती सतह पर मुनक़दा एक शानदार तकरीब में तहरीक पाकिस्तान में नुमाया खिदमात के एतराफ में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बानी रोजनामा सादत अलहाज नासिख सैफी के लिए गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया। यह गोल्ड मेडल अलहाज नासिख सैफी के बेटे खलीकुर रहमान सैफी एडिटर रोजनामा सादत ने वसूल किया। यह गोल्ड मेडल रोजनामा सादत के एजाजात में एक और इजाफा और रोजनामा सादत की तहरीक पाकिस्तान में जुर्रत और बेबाकी के साथ किरदार अदा करने का मुंह बोलता सबूत भी है। रोजनामा सादत की टीम फन सहाफत के अलावा कौमी और अवामी ज़रूरियात से भी बखूबी आगाह रही। लिहाजा
इंसाफती इकदार और कौमी और अवामी ज़रूरियात के पेश नज़र रोजनामा सादत ने नहायत मेहनत और तहकीक से हर कौमी दिन, त्यौहार और अहम मौके पर खुसूसी एडिशन की इशाअत का बाकायदा एहतमाम किया। इनमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, यौम दिफा, यौम मई, यौम इकबाल, यौम कायद के अलावा स्पोर्ट्स, ज़राअत, सनत और तालीमी एडिशन शामिल हैं। ये तमाम तस्वीरी झलकियां इन खुसूसी एडिशन की रोजनामा सादत की तरफ से मायारी अशात को पेश करती हैं। इन एडिशंस में मालूमात, तहकीक और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ साहिब इल्म लोगों के तहरीर करदा मज़ामीन शामिल हैं। रोजनामा सादत की टीम के सपूत सादत के उस मिशन को उसी तरह आज तक जारी सारी रखे हुए हैं जिसका आगाज 1937 में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशाद के मुताबिक बानी रोजनामा सादत अलहाज नासिक सैफी ने अपने कलम से किया था। इन मर्दाने अमल में जनाब अतीकुर रहमान सैफी, जनाब शफीकुर रहमान सैफी मरहूम व मग़फूर, जनाब रफीकुर रहमान सैफी, जनाब तौफीकुर रहमान सैफी, जनाब खलीकुर रहमान सैफी, जनाब अमीकुर रहमान सैफी और जनाब रिजवानुर रहमान सैफी शामिल हैं। दुआ है कि ये कारवां इसी तरह चलता रहे और तहरीक पाकिस्तान के मुजाहिद बानी रोजनामा सादत अलहाज नासिक सैफी की रूह को सुकून मिलता रहे। आमीन।